اور ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف صاحب. السلام علیکم اشتر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. زبیری صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. وعلیکم السلام, آپ کا شکریہ. اشتر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. 18 اگست کا عدالتی حکم نامہ سامنے آیا, سپریم کورٹ سے آرڈر آئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے, اور نیکسٹ ہیئرنگ جس طرح کہ آپ بھی جانتے ہیں 16 ستمبر کو ہوگی. وفاقی حکومت نے فوری اگلے روز, آلدو اس دن تو بڑا پازیٹیو رسپانس آیا کہ منوئن اس عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد ہوگا, لیکن پھر ریویو پٹیشن فائل کی گئی. آج وہ نظر ثانی کی درخواست پروسیجرل ایک محض اعتراض لگا کر وہ واپس بھی ہو گئی, لیکن اتنی تیزی سے ہم نے دوبارہ حکومت کی جانب سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اس وقت تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو خبریں کچھ یہی ہیں کہ وفاقی حکومت جہاں پر ایک طرف کہتی ہے کہ سرکاری اسپتال میں اگر علاج نہ ہوا تو پھر پمز ہسپتال یا پھر شفا ہسپتال جو ہے منتقل کرنے کا سوچا جا سکتا ہے, یا بیرون ملک بھی سابق وزیر اعظم کو بھجوایا جا سکتا ہے. آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا آج رات 12 بجے تک کا جو وقت ہے اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ بن جاتا ہے, اور یہ 18 اگست کا جو حکم نامہ ہے عدالت کا دیٹ ول ہولڈ دا گراؤنڈ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کس تناظر میں اس آرڈر کو پاس کیا گیا ہے. جو بھی انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹڈ پریزنر ہو, اس کو اس جرم کی سزا ملتی ہے جس جرم کا وہ مرتکب ہوا ہے. اس کے بیونڈ اس کو کوئی سزا نہیں مل سکتی, سوائے اس کے کہ جب وہ جیل کے اپنے قوانین کو توڑے. بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ ہیئر. دا پوائنٹ ہیئر از کہ صحت اور زندگی بنیادی حقوق میں شامل ہے, اور یہ انفورسبل حقوق ہیں. یہ نہ صرف فنڈامنٹل رائٹس ہیں بٹ ہیومن رائٹس بھی ہیں. تو جب اس تناظر میں ایک درخواست دی جائے کہ ایک پرزنر جو ہے اس کی بتدریج صحت جواب دے رہی ہے, تو پھر وہ آبلیگیشن نہ صرف کورٹ کی ہے بٹ آلسو آف دی گورنمنٹ. گورنمنٹ سب کی ہوتی ہے. گورنمنٹ جب پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ کسی ایک پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا, وہ سارے ملک کا اور تمام لوگوں کا پرائم منسٹر ہے, بیکاز وہ الیکٹڈ ہے اور میجارٹی سے الیکٹ ہو کے آیا ہے. اس کے اور اس کی کابینہ کے اوپر یہ لازم ہے, اور ان کا اوتھ یہ کہتا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے جس میں فنڈامنٹل رائٹس شامل ہیں. تو یہ جب پٹیشن کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کو سیریسلی اپوزیشن بھی نہیں دی حکومت نے, اور جیسے ہی یہ آرڈر آیا تو سب سے پہلے خیر مقدم کیا طارق فضل چودھری صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور یہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے پنگ پونگ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی نہیں ہے, یہ کنسیڈریشنز ہیں انسانی حقوق کی. تو یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست دی, اور اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ فلڈ گیٹ کھل جائے گا تمام ان پریزنرز کا جو کہ سملر ریلیف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ ریلیف کیا ہے؟ وہ ریلیف ہے اپنی مرضی کے ہسپتال میں علاج, ہسپتال میں جائیں. جی. تو وہ بات ہے. اشرف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ the order, when the government says the order is in violation of settled principle law as expounded by the Supreme Court, ماضی کی نظیریں دیکھ کے ہی نیچرلی عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا ہوگا, یا آپ اگری کرتے ہیں وفاقی حکومت کے اسٹانس سے؟ دیکھیے, میں بتاؤں, میں منظور وٹو صاحب کے کیس میں پیش ہوا تھا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہاں پہ بھی سچویشن ایسی تھی, اور میں میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی پیش ہوا جس میں وہی ہیلتھ ریزنز کی بات تھی, جس پہ کورٹ نے ریلیف دیا. اور منظور وٹو صاحب کے کیس میں بھی ان کو کہا گیا کہ آپ AFIC سے رجوع کریں گے, نہ کہ کسی نجی اسپتال سے, اور جب آپ روب صحت ہوں گے آپ واپس جیل چلے جائیں گے. تو یہ کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے, اور اس میں جو حکومت ہے اس کو 3 چیزوں کو انشور کرنا ہے. جی. ایک پراپر میڈیکل جو ان کا علاج,
उसका डायग्नोसिस वगैरह। और अगर वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो फिर वो मुल्क से बाहर चले जाएं। अगर वो किसी निजी अस्पताल में हो सकता है तो फिर वहां भी एक इशू आ जाता है कि क्या आप उसको सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी के घर को तो कर सकते हैं, बट क्या आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को जब सब जेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी पेशेंट्स होते हैं। जी नंबर टू जी जी नंबर टू कि उसको उनको एक्सेस होना चाहिए प्रॉपर किस्म के जो इलाज के लिए। और तीसरा ये कि सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। सिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी मेजर कंसर्न। राइट खास तौर पे जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो खुदा न खास्ता एनी अनटूवर्ड थिंग कैन रियली स्पार्क अ फायर। राइट ना माफ करे, ऐसी चीज अगर हो तो फिर मुझे बताएं कौन कंटेन करेगा, कौन और सा इस कोर्ट राइट इसकी जिम्मेदारी लेगा, बिल्कुल कौन सी हुकूमत उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल। लेगी। और सिटिंग गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे भी ये बात बहरहाल जो हमें भी इतलात आ रही है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो भी अस्पताल के अंदर और बाहर जो है वो इन प्लेस नज़र आ रहे हैं। बट ज़ुबैर साहब आपकी तरफ यही बात लेकर आना चाहूँगी मैं, और फिर मैं उसके बाद अशरफ साहब की तरफ क्योंकि उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के भी केस में जिस तरह से वो प्रेजेंट हुए थे तो क्योंकि बहुत हवाला मियाँ साहब के केस का भी दिया जा रहा है। बट ज़ुबैर साहब आपको लगता है माजी में भी हमारे पास बहुत सारे अब ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बड़े ब्लेटेंटली हमें फ्लाउट होता हुआ नजर आया। 2023 में आपको याद होगा वो इलेक्शंस के हवाले से मई में उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए अहकामात जारी किए थे, तब नहीं हुआ। 2024 में मखसूस नशिस्तों का फैसला था, उस पर ना सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ था बल्कि हमने कुछ अरसे बाद वो फैसला भी ओवरटर्न होते हुए देखा था। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस मौजूद है। बट इज दिस कोर्ट डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑन द करंट गवर्नमेंट? बिकॉज कल मेरे प्रोग्राम में स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे थे कि जजेस कानून और आइन फिर छोड़ दें और तिब की हिकमत शुरू कर दें। वो डॉक्टर्स नहीं है जिसका काम उसको साजे। सो आप कैसे तय कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है, रिकॉर्ड भी मंगवा लिया और फिर फैसला भी दे दिया और फिर सारी उनकी प्रेयर्स जो है इन टोटलिटी आपने इंटरिम मेजर के तौर पे जो है आपने अलाउ भी कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बैरिस्टर अकील को कानून पढ़ना चाहिए, सॉरी टू से। अगर उन्होंने ये बात की सुप्रीम कोर्ट फैसला शायद गलत भी होता है, गलत भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझ पे आप पे बाइंडिंग होते हैं। आपके पास ओनली ऑप्शन होता है कि आप उसकी नजरसानी दरखास्त की जो गवर्नमेंट ने की, लेकिन वो सही नजरसानी दरखास्त नहीं थी। तो ये कहना, पहले आप देखिए पहले दिन तो बड़े वेलकम कर रहे थे, फिर शाम को जो लॉ मिनिस्टर साहब थे तारड़ साहब, उन्होंने कह दिया कि जी हम इसको देखेंगे, नजरसानी की दरखास्त दाखिल लीगल करेंगे। पैरामीटर्स के विदिन नहीं है। देखिए वो तो इनका नेची इमरान खान साहब के हक में कोई भी फैसला आ जाए या उनके उसमें आ जाए फैसला तो फौरन वो तो सुप्रीम कोर्ट गलत होती है। वैसे जुबैर साहब आप कहते थे 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आया, ये पहला फैसला है फिर बराबर जिससे ये कोई फैसला नहीं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। आप बता दिखा दें। और मैं 23 वाले केस में मैं वकील था, आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को कंटेम्प्ट इशू करनी चाहिए थी, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वो नहीं की गई। चलो खैर वो तो अब माजी का हिस्सा हो गया। कि अब देखिए यहाँ जैसे मैं पूरी तायद करूंगा अपने बड़े भाई की, अशतर भाई की, कि देखिए इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उनका सेहत का मामला था, क्यों निजी अस्पताल को उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया? कोई वजूहात देके कि जब उनकी आंख का मामला हुआ, अब ये भी तो देखना है कि उनकी आंख जाया हो गई या नहीं। रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल उनको ले जाया जाता था। नेचुरली वहां वो हो सकता है फैसिलिटीज नहीं, उनके डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात नहीं, उनकी खानदान से उनकी मुलाकात नहीं, उनके बच्चों से उनसे बात करने की नहीं दी जाती। उनको इस तरह कहते तन्हाई में रखा गया, जिसकी वजह से, और खुद गवर्नमेंट के लोगों ने ये रिपोर्ट दी, जिसको मद्देनजर उन्होंने रखते हुए कहा कि जी इनको निजी अस्पताल, और कई केसेस में आपको बताऊं जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स निजी अस्पताल गए। प्रेसिडेंट जरदारी साहब पे जब इन्हीं की हुकूमत ने केसेस बनाए, जाली केसेस सारे बने थे उनके खिलाफ, तो उनको भी इवेंचुअली जियाउद्दीन अस्पताल कराची में, फिर मैं वकील था शर्जी मेमन साहब का, वो भी जियाउद्दीन अस्पताल में रहे, अंडर ट्रायल थे प्रिजनर। और देखिए नवाज शरीफ साहब के केस में वो कन्विक्टेड थे, वो अपील तो उनकी बाद में अलाउ हुई है ना जी, उनसे आके प्रोसिक्यूटर पहले ही पहुंच गया और उनके एयरपोर्ट भी उनसे सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए। एक 50 रुपए के स्टैंप पेपर एक कन्विक्टेड शख्स को आपने मुल्क से जाने की इजाजत दे दी गई। देखिए तो फिर सारे लोग जो बीमार होते हैं या और लोग, उनको भी मुल्क से बाहर जाने की, इलाज करने की इजाजत दी जाए। देखिए तो ये इस गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्टर साहब को ये शिवा नहीं देता था कि वो ये एग्जाम्पल दें कि फ्लड गेट्स खुल जाए। कोई फ्लड गेट नहीं खुलता। यहाँ जिना अस्पताल में भी लोग रहे आके, उनके प्राइवेट वार्ड्स हैं,
जिन्ना अस्पताल में, वो सरकारी अस्पताल है जिन्ना अस्पताल कराची में, लेकिन वहाँ एक प्राइवेट वार्ड है जहाँ ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स इवेंचुअली कोर्ट से ऑर्डर करा के या हुकूमत उनको वहाँ रख देती है, वो आम लोगों के साथ नहीं होते, और वहाँ भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं पूरे कराची में जिन्ना अस्पताल में। कोई मेरे क्लाइंट्स जो रहे इस तरह के वो जिन्ना अस्पताल के प्राइवेट विंग में रहे। तो ये कह देना कि जी शिफा अस्पताल में जाके ये फ्लड गेट्स खुल जाएगा, एक आदमी है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं, वो एक आदमी है तो आपने सजा, आप जैसे अभी अशरफ भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि इंसान की जिंदगी और ये आपका बुनियादी हुकूक है, ह्यूमन राइट्स भी है, लेकिन आप बताइए, इनसे पूछें कि क्या इस आदमी, इस शख्स के जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, चाहे आप उस पर कहें बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन क्या आप उसका हक नहीं है कि उसकी जिंदगी का आपने आंख उसकी जाया करा दी, जो भी पता लगेगा कि वो हुई है, और उनकी सेहत का ऐसा मामला है, और आज 2 दिन हो गए, अगर उनकी सेहत इतनी खराब है, आज 2 दिन से पॉलिटिक्स नहीं हो रही उनको, उसी वक्त पहले इनके मिनिस्टर्स ने आके अमल करेंगे, उसी वक्त इनको शिफ्ट कर देना चाहिए था, और फिर आप रिव्यू डाल देते कि जी आपने गलत, आपने फाइनल फैसला कर दिया, जो भी आपको ग्राउंड देने थे वो आपका हक है, लेकिन आपने पॉलिटिक्स किया। आज कहने जी 12 बजे तक, जैसे अशरफ भाई ने कहा कि सीखते नहीं है, हो सकता है शायद सीख जाए, तो इनका हक है इनका, लेकिन पीटीआई के जो खुद के वकलाए हैं, उनकी टीम है, उन्होंने खुद, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को फेल किया उनके मुख्तलिफ स्टेजेस और अभी भी वो रिएक्शन बहुत ज्यादा, बहुत माइल्ड या डोसाइल सा एक रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इवन सो मच सो कि अगर मेडिकल रिकॉर्ड या रिपोर्ट भी जो है वो स्पीक्स अदरवाइज, अगर उनकी कंडीशन के हवाले से मेरा यही अफसोस की बात है कि मैं समझता हूं कि उनके जिस तरह से उनका केस मुख्तलिफ फोरम्स पे, और नेचुरली आपको पता है 26 से 27 तरमीम के बाद अदालतों का जो हाल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाल आपके सामने, तो उसके बाद आपको हर स्टेज पे लड़ना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी तो वकील उनके छुट्टी पे होते हैं, कभी वो केस उनका नहीं होता, वो आपस में ही मेरे ख्याल से मुत्तफक नहीं है कि किस तरह से उनका केस लड़ा जाए। देखिए, मैंने देखा पीपल्स पार्टी के लोग थे, या नवाज शरीफ साहब के वकील, अशरफ भाई वकील रहे, आप पूछिए किस तरह बहादुर ये लोग लड़ते थे, हर स्टेज पे अगर कोई फैसला आता था उसको चैलेंजेस होते थे। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।